So guys, today I am going to discuss with you some basic illustrations on the topic of ellipse. So let's start. So yes guys, read out the statement. Find the distance between the directrices of the ellipse x square upon 36 plus y square upon 20 is equals to 1. So again firstly we will check out कि conjugate ellipse है कि simple horizontal ellipse है. तो तुम्हें नजर आ रहा है कि a is greater than b, a is 6, a square is 36 and b is root 20. कि b square हमारे पास क्या होगा 20. So b is root 20. So root 20 is about 4 point something. So a is greater than b. तो अभी हमें क्या निकालना है the distance between the directrices. So as we know कि simple जब हम horizontal ellipse लेके चलते हैं, so what is the equation of directrices? That is equals to x is equals to plus minus a by e. X is equals to a by e and x is equals to minus a by e. And this is the center. So if I ask what is the distance between the directrices, तो इधर भी a by e यूनिट्स हो जाएगा और इधर भी a by e यूनिट्स हो जाएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या आ जाएगा बच्चों? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस? दैट इज इक्वल्स टू 2a by e. So for finding the distance between two directrices, we have to find a and e. A is given to us and we have to find out the value of e. So how we find e? By this relation. As all of we know, there is a relation between b, a and e, that is b square is equals to a square into 1 minus e square in case of horizontal ellipse. So simply substitute the values of a square and b square and we will get the value of e. Now b square is directly I can substitute here. B square is 20, a square is 36. Now I can find out the value of e. That is 1 minus 20 by 36. That is equal to 16 by 36 basically. When you take LCM 16 by 36 and when you take root, then that will be equals to 4 by 6. इसको cancel करोगे then you are getting 2 by 3. तो lowest term में आ गया centricity की value, that is equals to 2 by 3. So again I have to take the positive value of the centricity. So एक e की value आ गई है और यहाँ पे हम डालेंगे distance between directrices, that is 2a by e. A is 6 and e is 2 by 3. So our answer is 18. So I hope this is clear to you. Please have a note of it. Now move on to the next question. That is example number 9. If the latest sectum of an ellipse is equal to half of its minor axis, then we have to find its eccentricity. Now, as I told you, you have to learn the latest sectum, what is this foci, what are the coordinates. So we know that the latest sectum of an ellipse, when nothing is given to us, then I told you that you have to take the general equation of ellipse of horizontal ellipse basically. तो सिंपल इलिप्स हम हॉरिजॉन्टल ही लेंगे जब हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ. तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या होती थी गाइस? लेटेस्ट सेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a. डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, फोकल कोड बेसिकली. फोकल कोड तो ये भी हो सकती है बट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसकी लेंथ होती थी लेटेस्ट सेक्टम की, दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a. अब नाउ ही इज सेइंग द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस. और इस केस में जो मैंने ड्रॉ किया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अवर माइनर एक्सिस इज 2b. माइनर एक्सिस इसमें 2b होती थी, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b. So this relation is given to us and we have to find its eccentricity. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें हम b 0 नहीं ले सकते हैं. जैसे ये मैंने बताया हुआ है कि ऐसे b को कट नहीं कर सकते हैं हम. दिस इज 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू b. वी कैन नॉट कट डायरेक्टली b, बट अगेन यहाँ पे b की 0 वैल्यू ही आएगी. जैसे अगर मैं ऐसे लेती नहीं हूँ 2b स्क्वायर बाय a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b अगर कॉमन भी निकलेगा दैट इज 2b बाय a माइनस 1, तो b इसमें 0 तो हो ही नहीं सकता. अगर b 0 हो गया इसका मतलब एलिप्स तो बनेगा ही नहीं. तो यहाँ से मेरे पास आया 2b इज इक्वल टू a. ये एक रिलेशन आ गया.
बट आई हैव टू फाइंड दी इसेंट्रिसिटी. अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है. तो अगेन आई यूज दिस रिलेशन. एज आई टोल्ड यू, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुम्हें टिप्स में होना चाहिए. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. सो व्हाट वी डू हियर, बी की प्लेस पे या ए की प्लेस पे, मतलब ए की प्लेस पे हम डी लिख देते हैं. तो ए इज 2b, तो ए स्क्वायर इज 4b स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास. So I can find out the value of e square, क्योंकि b square eliminate हो गया. So 1/4 is equal to 1 minus e square. So I have found the value of e, that is equal to 1 minus e square is equal to 1 minus 1/4, 3/4, और square root जाएगा तो under root 3/2, and we have to take the positive value of eccentricity. So guys, this is very easy. Again I am telling you, इसमें हमें लेटेस्ट सेक्टम पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a. फाइनल एक्सिस पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2b इन केस ऑफ सिंपल हॉरिजॉन्टल एलिप्स. तो 2b स्क्वायर बाय a, लेटेस्ट सेक्टम इज गिवन टू यू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस. तो इसे सॉल्व किया, a और b में एक रिलेशन आ गया और सिंपल इस रिलेशन में डाल दिया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर. तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, एंड वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी एज इट इज द ratio of two distances. So please have a note of it. Now guys, moving on to the next question. Find the equation of the ellipse whose axes are along coordinate axes and vertices are plus minus 50 and foci are at plus minus 40. So again हमें क्लियर हो रहा है प्लस माइनस 50 मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे है, वर्टिसेस जो इसके हैं, और फोकस foci are also at x-axis. So if we draw the figure, so it will be like this. Vertices are 50 and minus 50 and foci are 40 and minus 40. And this is symmetrical about center. So again we have to find the equation of ellipse. तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है इसका सेंटर तो 0 0 पे ही होगा, बिकॉज मैं बता चुकी हूँ जो फोकस होता है का मिड पॉइंट, फोकाई का मिड पॉइंट सेंटर होता है ellipse का. So take this 0 0. So x minus 0 whole square basically x square plus y square ही बन जाएगा. And what is a? Now this is a. A is 5, and we don't know b. We don't know the value of b, but we know AE. As we know what are the coordinates of focus, AE0 and minus AE0. Foci are at plus minus AE0. So AE is 4. So we have to find this equation. So for this we have to find a and b. a मुझे पता है, मुझे b निकालना है. Again a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास e आ जाएगा, that is equal to 4/5. Again एक रिलेशन जो तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है एलिप्स में, उसके बिना तो काम ही नहीं चलना काफी क्वेश्चंस में, and that is b square is equal to a square into 1 minus e square. So how we find the value of b? We find the value of b from this equation. Substitute value of a as well as e. A is 5, 5 square is 25, and eccentricity is 4/5, so e square is 16/25. So when you solve for b, so 25 minus 16 take LCM, so b is equal to 3 basically. Okay, b is plus minus 3. So हम यहाँ पे वैल्यू लेके चल रहे हैं b की plus 3. Clear? So just substitute here and we will get the equation. X square upon a square is 5 square, 25. Y square upon b square is 9. So we have got the value of a and b. So what is the equation of ellipse? X square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1. यहाँ पे अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं b के, बट कोऑर्डिनेट क्योंकि लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव b, 0b और 0 माइनस b इधर ही होगा. तो हियर वी टेक b इज इक्वल टू 3 और इधर आ जाएगा -3. तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, वी हैव डन इट. So please have a note of it. So guys, moving on to the next question. Read out the statement. Find the equation of the ellipse whose axes are along the coordinate axes and vertices are 0, plus, minus 10 and eccentricity is 4/5. So again he is saying axes are along coordinate axes. मतलब एक्सिस की x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग होंगी और इसमें इसने वर्टेक्स क्या दे दिया 0, plus, minus 10.
तो यहीं से मुझे पहचान हो जाती है कि वर्टेक्स जो है वो y एक्सिस पे आ रहा है, x 0 है, तो फोकाई आर आल्सो अलोंग y एक्सिस। तो ये कॉन्जुगेट इलिप्स बनने वाला है गाइस हमारे पास 0 10 एंड 0 -10 एंड सेंट्रिसिटी इज 4/5। तो कॉन्जुगेट इलिप्स में क्या याद रखने के लिए बोला था मैंने तुम्हें, ए बी को इंटरचेंज कर देना है, एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो गया, ये 0 b आ गया यहाँ पे एंड दिस इज 0 - b, इज इट क्लियर? So b is 10 here and e is 4/5. अगेन अभी हमने रिलेशन किया हुआ b square is equal to a square into 1 minus e square। तो इसमें कॉन्जुगेट इलिप्स में a भी इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, a square is equal to b square into 1 minus e square। Is it clear guys? So we have to find the equation of ellipse. Yes, we have to find the equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। So a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मुझे ढूंढनी, e पता है, b पता है, a यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे और एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। बस ये कॉन्जुगेट एलिप्स बनेगा बिकॉज इसमें a देखो, a हमारे पास b से छोटा आने वाला है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, so firstly I am just substituting the values। a square, a we have to find, value of b is 10, 10 square is 100, 1 minus e square 16/25। So what is a square? 36। Okay, here guys, is हमारे पास LCM लो 25 minus 16, that will be 9 and 100/25 that is equals to 4, so a square is 36। Okay, so we have find out the value of a square। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। What is a square? That is 36, and what is b square guys? That is equals to 100। So our equation is x square upon 36 plus y square upon 100 is equals to 1। So these are some basic questions which we are discussing। बहुत easy हैं ये, और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। बेसिक्स आते होने चाहिए, रिलेशन पता होने चाहिए, कॉन्जुगेट और वर्टिकल एलिप्स पता होना चाहिए, when a is greater than b, when a is less than b, when the major axis will be along y axis। So just have a note of it। Now guys, example number 12 and example number 13 is your homework। Do it yourself। You people can do it very easily। बिल्कुल सेम है, इसी के पैरेलल है जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशंस करी हैं, ठीक है। फोकाई दिया हुआ है, सेंट्रिसिटी दी हुई है, तो ये हम b, a और e के रिलेशन से निकाल लेंगे। Now moving on to the next question। So guys, let's do one more question। Find the equation of the ellipse with the foci are at plus minus 50 and x equals to 36/5 as one of its directrix। So again, focus are on x-axis। This is 50 and minus 50। So obviously जो पॉजिटिव डायरेक्ट्रिक्स है x is equals to 36/5 वो इधर राइट हैंड साइड पे होएगी, इस फोकस के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये डायरेक्ट्रिक्स होएगी। तो हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। अगेन फोकस का सेंटर पॉइंट, दोनों फोकाई का सेंटर पॉइंट हमारे पास 0 हो गया। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b here। द इक्वेशन ऑफ द ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। So we have to find out the value of a and b, and as we find the value of a and b तो हमारे पास ellipse की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो करो इसको। अगेन व्हाट इज x equals to 36/5? डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है गाइस हमारे पास, a by e होती है ना। So this is equals to 36/5, this is given to us, and AE is also given to us, one of the foci AE is 5। Is it clear? AE is 5 here and x equals to a by e, डायरेक्ट्रिक्स is 36/5। तो इन दोनों को सॉल्व करना है और मुझे a और e की इक्वेशन a और e की वैल्यूज निकाल लेनी है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं a और e में, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और e आ जाएंगे। अब इनको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, एक से वैल्यू निकाल ली, दूसरे में डाल दी, तो मल्टीप्लाई कर दो गाइज। a by e इंटू ए, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होने वाला है, दिस इज 5 इंटू 36/5। तो e is getting eliminated and a square is equals to 36। तो a आ गया
प्लस माइनस 6 बेसिकली ए स्क्वायर ही हमने ले लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 लेंगे अगर हमने वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए बोले होते तो, क्योंकि हमने इक्वेशन निकालनी है। देन अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ई की वैल्यू डालो। अब ई कैसे आएगा, ए पता चल गया मेरे पास, ए 6 आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है ए 6 आ रहा है, तो ई क्या आ रहा है गाइस, E is 5/6. So just substitute the value here. E is 25/36. And what is the value of B square? When you take LCM, then B square is equals to 11. So value आ गई मेरे पास x square upon a square plus y square upon b square. A square की प्लेस में मैं डायरेक्टली लिखने लगी हूँ 36 and b square की प्लेस पे 11. So we have got the equation. So I hope this question is clear to all of you. Yes guys, reply me. So guys, let's do one more question. Find the equation of the ellipse whose axes are parallel to the coordinate axes and having its center at point 2 minus 3, focus at 3 minus 3 and vertex at 4 minus 3. So मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो डायरेक्टली क्लियरली नज़र आ रही है, -3 -3 -3। मतलब अगर इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये लिख लिया मैंने, इसका सेंटर है मेरे पास 2 minus 3, फोकस इज at 3 minus 3 and one of the vertex is at 4 minus 3. So अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अगर मैं जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ए यूनिट्स होता है। इन बुक्स दिस क्वेश्चन इज डन अ बिट लेंथी, प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करा हुआ है। तो अगर हम ज्योमेट्री से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो इजीली और शॉर्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव्स में फाइंड आउट कर पाएंगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस ए यूनिट्स होता है और सेंटर और वन ऑफ द वर्टेक्स इसके बीच में डिस्टेंस ए यूनिट्स होता है। इसी को अब मैं कंपेयर करने वाली हूँ एंड देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स वेरी इजीली। सो दिस इज ए यूनिट बेसिकली and this is A unit basically. So distance between center, take it C, take it any point N, and this is CS. CS, distance between center and focus is AE, and this is distance between center and one of the vertex CN, that is equals to 4 units. अब इसे इसको डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया हुआ है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमें ज्योमेट्री से नजर आना चाहिए y is at the same level -3 -3. तो बेसिकली दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये अगर कुछ ऐसा बनेगा अभी तो गाइस कुछ ऐसे बनने वाला है, ये मतलब बिलो एक्स एक्सिस। अब स्कूल पेपर्स में तुम्हें कोई देखता नहीं है कि तुम्हें फिगर ड्रॉ करनी है, बट अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपरली इसकी एक प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ए यूनिट्स फ्रॉम सेंटर एंड दिस इज फ्रॉम सेंटर टिल 1 वर्टेक्स, दैट इज ए यूनिट्स। तो ये तुम्हें नजर आ रहा है, दिस इज 1 यूनिट, ए ई 1 यूनिट हो गया, 2 to 3 1 यूनिट आगे मूव कर रहा है एंड 2 to 4 2 यूनिट्स मूव कर रहा है, तो ए हो गया 2 यूनिट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज ए ई एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वन ऑफ द वर्टेक्स इज ए। सो ए इज 2 एंड ए ई इज 1 यूनिट। एंड वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंटली विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि सेंटर जब 2 minus 3 पे होता है देन वी राइट लाइक दिस, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो हम क्या करते होते थे, x - 2 को कैपिटल X ले लेते थे और y प्लस 3 को कैपिटल Y ले लेते थे। तो सेंटर अगर उल्टा सोचो, अगर सेंटर की कोऑर्डिनेट्स यूँ हैं 2 और -3, तो हमें किस फॉर्म में लेना है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर की फॉर्म में, दैट इज x - 2 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस होने वाला है, y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So we will find the value of E from here. A is 2, E is half आ जाएगा हमारे पास। Again from the relation B square is equals to A square into 1 minus E square, I can find out the value of B square. So B square is equals to 4 into 1 minus 1 by 4. So B square हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा guys. So we have find the equation.
सो व्हाट विल बी द इक्वेशन गाइस? यहाँ से इक्वेशन क्या बनने वाली है? x minus 2 whole square plus y minus of minus 3 will be plus 3 whole square. X minus 2 whole square upon 4, y plus 3 whole square upon 3, that is equals to 1. So this is the equation of ellipse guys. So please have a note of it. So we have discussed today some basic questions of ellipse of different types, but these are very easy illustration. This can come in your school exams in 3 marks, or some questions even can come in MCQs in 1 mark also. 3 to 4 marks these questions can come. So guys, if you understood this concept, then please like and subscribe to my channel as well as share my videos with your friends. Bye bye.